welcome you all to the inaugural function of pre-registration coursework for PhD students on research and publication ethics. Veer Narmad South Gujarat University is one of the largest university of Gujarat in terms of number of affiliated colleges and enrollment of students. The university has endeavored to be an institution of excellence in higher education since its existence, keeping in view the regional needs and the emerging trends in the global scenario. The mandate of the university is to meet the developmental needs of the seven districts and two union territories in the region. The university attempts at realizing their potential in every walk of life, ranging from technology, business, industry, and commerce to language, culture, and fine arts. Moreover, the university is working on the implementation of national education policy in the word and spirit. The university is striving to uplift the standards of research, and the present program is a step in that direction. We are happy to inform you that Veer Narmad South Gujarat University, Surat, has organized this pre-registration course on research and publication ethics as per the directions from University Grants Commission. The University Grants Commission has approved this two-credit course for awareness about publication ethics and publication misconduct for prospective PhD research scholars. Today, we have amongst us Dr. Uma Shankar Pachoriji, National General Secretary, Bharatiya Section Mandal, as the chief guest of this function. As guest of honor, we have with us today Dr. Ami Upadhyay Ma'am, Honorable Vice Chancellor, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Gujarat. Dr. K.N. Chawda Sir, Honorable Vice Chancellor, Veer Narmad South Gujarat University, Surat, as President of today's function. Dr. Jaideep Chaudhary, In charge Registrar, Veer Narmad South Gujarat University, Surat. We are also grateful to have amongst us members of Senate and Syndicate, deans of various faculties, heads of departments, teachers, university officials, representatives of the media, research scholars, and other invited dignitaries. As per the tradition of our university, we shall now begin today's program with the university song. I request the media team to please play our university song.
મને કોર્સ લાવી દે સવારથી કામમાં છું એક ધારો થાક્યો હોત નહીં અવાજ જ નહીં આવે હરખી રીતે. Thank you very much. In India, we see the reflection of God in guests. This Vedic philosophy is all the more relevant to South Gujarat because it is known for its overwhelming and endearing hospitality. In keeping with long cherished tradition, may I call upon Dr. Jaideep Chaudhary, in charge registrar of our university, for his welcome address. Sir. સૌને પ્રણામ. Honorable Vice Chancellor of Veer Dharmat South Gujarat University, Dr. K.N. Chawda sir, Dr. Amiben Upadhyay, Honorable Vice Chancellor, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Dr. Umashankar Pachori ji, National General Secretary, Bharatiya Shikshan Mandal, Dr. Rajesh Patel, Dr. Hemaliben Desai, Dr. Hinaben, Sunil Bhai, PhD scholars, and other invitees. First of all, I congratulate all the PhD scholars who have been recommended by their respective research advisory committee to pre-registration coursework on research and publication ethics. And I heartily welcome all of them to Veer Dharmat Dakshin Gujarat University. So on behalf of Veer Dharmat Dakshin Gujarat University, I heartily welcome Dr. Amiben Upadhyay, Honorable Vice Chancellor, Baba Saheb Ambedkar Open University, guest of honor. I also welcome Dr. Umashankar Pachori ji, National General Secretary, Bharatiya Shikshan Mandal, as a chief guest, and all those who are present online. So I heartily welcome all. Thank you all. Thank you, sir, for the welcome address. May I now request Dr. Rajesh Patel, Professor, Department of Biosciences, VNSGU University, to give a brief overview about this course on research and publication ethics. Good afternoon, everybody. On behalf of Veer Dharmat Gujarat University, I welcome you all for this Research and Publication Ethics course. આખો કોર્સ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે જે યુજીસીની નવી ગાઈડલાઈન પ્રમાણે 2 ક્રેડિટનો કોર્સ કરવામાં આવેલો છે. આ કોર્સ મૂળભૂત રીતે 4 કમ્પોનન્ટમાં વહેંચાયેલો છે. કોર્સનું પ્રથમ જે ડિગ્રી માટે તમે એપ્લાય કરી રહ્યા છો તે ડિગ્રી છે ડોક્ટર ઓફ ફિલોસોફી. એટલે કોર્સના પ્રથમ ભાગમાં તમને ફિલોસોફી અને એથિક્સનું ગાઈડલાઇન્સ આપવામાં આવશે.
બીજા ભાગમાં સાયન્ટિફિક કન્ડક્ટ, પબ્લિકેશન કન્ડક્ટ અને અત્યારના પ્રવર્તમાન નવા પ્રોબ્લેમો સાથે એને સાંકળવામાં આવેલો છે. આ કોર્સનું મહત્વ એટલા માટે વધી જાય છે કે જ્યારે આપણે આપણી મનુષ્યની વિકાસની પ્રક્રિયા જોઈએ ત્યારે આપણે જોઈએ છે કે મનુષ્ય જ એક એવી પ્રજાતિ છે કે જેનામાં એકબીજાની સાથે સંવાદ કરવાની ભાવના રહેલી છે અને આ સંવાદ અને કોમ્યુનિકેશનના લીધે જ માણસ જાતિનો વિકાસ છે બધાથી અગ્રસર થયેલો છે. જ્યારે આપણી પાસે કોમ્યુનિકેશનના બીજા માધ્યમો નહોતા ત્યારે આપણે ફક્ત ભાષાથી સંવાદ કરતા હતા અને ત્યારબાદ ધીમે ધીમે આપણે એ વસ્તુને પ્રિન્ટમાં લઈ આવ્યા અને એને કહેવામાં આવે છે પબ્લિકેશન. ધીમે ધીમે તેમાં સાયન્ટિફિક આસ્પેક્ટ એડ થયા અને એનાથી રિસર્ચ પબ્લિકેશન્સના કન્સેપ્ટ આગળ આવ્યા. જેમ સમય જતો ગયો તેમ આની સાથે જ આપણે નવી ટેકનિકો ડેવલપ થઈ અને હાલમાં જે આપણે વાપરીએ છીએ તે આઈસીટી અને ઇન્ટરનેટના લીધે જે પણ ઇન્ફોર્મેશન છે તે વિશાળ સ્વરૂપે જોવા મળે છે અને આના લીધે થઈ અને આપણે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિમાંથી નોલેજ ક્રાંતિ અને નોલેજ ક્રાંતિમાંથી આજે ઇન્ફોર્મેશન ક્રાંતિમાં આવી ગયેલા છે. પણ આ બધાની સાથે એક નવો પ્રોબ્લેમ ઉભો થયેલો છે. જ્યારે પણ આપણને કોઈ નવી વસ્તુ જાણવી હોય છે ત્યારે આપણે હંમેશા નેટ ઉપર જઈએ છીએ અને નેટમાંથી કોઈ મળેલી વસ્તુ એક જગ્યાથી લઈ અને થોડી મોડિફાઈ કરીને બીજી જગ્યાએ મૂકી દઈએ છીએ. આ વસ્તુને કહેવામાં આવે છે પ્લેગિયરિઝમ. ધીમે ધીમે જેમ આપણી નીતિનો વિકાસ થયો એવી જ રીતે સંશોધનકર્તામાં પણ આવી ભાવનાઓ વધી અને જેના લીધે હાલમાં આપણે જોઈએ છીએ કે જે ભારતમાં પીએચડી નું સ્તર છે એ પીએચડી ના સ્તરમાં ગુણવત્તા પ્રમાણમાં ઓછી અને આ ગુણવત્તા સુધારવા માટે યુજીસી આ રિસર્ચ એન્ડ પબ્લિકેશન એથિક્સનો સ્પેશિયલ કોર્સ ડિઝાઇન કરેલો છે. આ કોર્સ 2 પાર્ટમાં કન્ડક્ટ કરવામાં આવશે. તેનો પહેલો પાર્ટ છે થિયરી અને બીજો પાર્ટ છે પ્રેક્ટિકલ. તો કાલથી શરૂ કરવામાં આવતા રેગ્યુલર વર્ગમાં તમને થિયરીમાં વિવિધ પ્રકારના એક્સપર્ટ દ્વારા તેના થિયરીના પોઈન્ટ ઉપર માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે અને તેને સંલગ્ન પ્રેક્ટિકલનું માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવશે અને કોર્સના અંતે એમસીક્યુ એક્ઝામ દ્વારા તમારે આ કોર્સ પાસ કરવાની રહેશે. એટલે હું આશા રાખું કે આ કોર્સ સાથે જોડાયેલા બધા વિદ્યાર્થીઓને તેનો મહત્તમ લાભ મળે અને તે લાભના આધારે તેઓ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી પોતાની રિસર્ચની કામગીરી કરે અને સારી થીસીસ બનાવે. એવી બધાને આભાર. Thank you, Dr. Patel, for giving a brief overview about this course. Education is the technique of transmitting civilization. And we are very honored to have amongst us somebody who has contributed substantially to the field of education. I am privileged to introduce Dr. Umashankar Pachoriji. Sir is National General Secretary of Bharatiya Shikshan Mandal. He is PhD in History from Jivaji University, Madhya Pradesh. Umashankarji has worked as a professor in Maharaja Man Singh Mahavidyalaya and Boston College at Gwalior, Madhya Pradesh. Sir has numerous awards and research publications to his credit. He is a mentor and source of inspiration for the young students who are preparing for competitive exams. He is the member of various national and state level committees constituted by Ministry of Education, Government of Gujarat. May I now take the honor of inviting him for his address as chief guest. Umashankarji. उमाशंकर हमारी जी। ऑडियो हाँ जी, आ रही है सर। आपकी आवाज आ रही है सर। जी धन्यवाद। इस विश्वविद्यालय के ऑनरेबल वाइस चांसलर, आज के इस कार्यक्रम की गेस्ट ऑफ ऑनर और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति आदरणीय प्रोफेसर अमीबेन उपाध्याय, इस पूरे कार्यक्रम के प्रणेता और इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर आदरणीय जयदीप सर, अन्य समस्त फैकल्टी मेंबर्स और समस्त रिसर्च स्कॉलर्स, शोध एक ऐसा काम है जिसको करने के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता होती है।
आप सबने रिसर्च के लिए अप्लाई किया है और इस पहले कार्यक्रम में आप शामिल हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना आपके रिसर्च को इस ऊंचाई तक ले जाए जिससे आप जिस प्रॉब्लम पर काम करना चाहते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सबसे खास बात यह है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होना है और उस परिवर्तन की शुरुआत गुजरात में वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से हो रही है। ये बहुत आनंद का विषय है। शोध रिसर्च यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा काम होता है। एक स्कॉलर की जिम्मेदारी है कि सोसाइटी में जो कुछ भी हेय है, हमारे दर्शन में, फिलॉसफी में 4 चीजें बताई गई, 4 शब्दों का प्रयोग हुआ है। हेय, व्हाट इज अनडिजायरेबल, ऐसा हमको क्या लगता है जो सोसाइटी के हित में नहीं है, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, उस प्रॉब्लम के लिए अपने आप को चिंतन में डालना, सोचना, लगातार समझना क्या प्रॉब्लम है जो अनडिजायरेबल है सोसाइटी को, वह हेय है। ऐसा कोई हेय सब्जेक्ट के रूप में चुनना। हम जिस विषय में भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमको क्या हेय दिखाई देता है जो हम नहीं चाहते, सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है, खराब है, घातक है, डिजायरेबल नहीं है, अनडिजायरेबल है। जब हम हेय को फाइंड आउट कर लेते हैं, हम अपना रिसर्च का टॉपिक चुन लेते हैं, प्रॉब्लम चुन लेते हैं, तब उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तब हम पहुंचते हैं हेय हेतु क्या है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस अनडिजायरेबल थिंग। जो हमने प्रॉब्लम चुनी है, हमने सब्जेक्ट लिया है, हमने टॉपिक चुना है रिसर्च का, उसका हेतु क्या है, हेय हेतु क्या है, क्यों अनडिजायरेबल वो चीज मौजूद है। पहला बिंदु आता है रिसर्च में हेय, दूसरा बिंदु आता है हेय हेतु, और तीसरा बिंदु आता है हान। हान अर्थात डिजायरेबल। हम क्या सॉल्यूशन देना चाहते हैं, क्या हान क्या है, डिजायरेबल क्या है, उस डिजायरेबल को समझना। और अंत में होता है हानोपाय, क्या उसके उपाय हैं, सॉल्यूशन क्या है जिससे हम उस हान को प्राप्त कर सकें। इन 4 बिंदुओं को जितने अच्छे से रिसर्च स्कॉलर फाइंड आउट करता है, समझता है, उतना ही उसका रिसर्च का स्तर अच्छा होता है। दुर्भाग्य से अब तक जो रिसर्च हो रहे हैं
यूनिवर्सिटीज में होने वाले रिसर्च बहुत बड़े परिमाण में होते हैं हर वर्ष। इस देश की यूनिवर्सिटीज में हजारों की संख्या में रिसर्च होते हैं और हर रिसर्च किसी न किसी एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसके सॉल्यूशन को हमारे सामने रखने के लिए ही होता है। यदि देश में हर वर्ष 10-12 हजार पीएचडी होती हैं, इट शोज कि 10-12 हजार प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिए गए, पर दुर्भाग्य से देखने में यह आता है कि एक भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। प्राप्त करने के लिए होता है। भारत की यह परंपरा नहीं है, इसलिए अब इस नए कोर्स को पीएचडी स्कॉलर्स के बीच लाने की जरूरत पड़ी। यूजीसी ने ये जो नया कोर्स आपके सामने रखा है, उसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट है। जो लोग रिसर्च में जा रहे हैं उनको पहले ये समझ लेना चाहिए वे साधारण लोग नहीं हैं, साधारण टीचर भी नहीं हैं, दे आर स्कॉलर्स। और स्कॉलर्स की जिम्मेदारी क्या होती है? वे ऋषि होते हैं और ऋषियों का काम है समाज का कल्याण। वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिया करते। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जिनमें स्वार्थ की प्रवृत्ति होती है, अपनी रोजी रोटी, अपना करियर, अपनी फैमिली की चिंता करने वाले लोग होते हैं। पशु तुल्य होते हैं, उनको नर पशु की संज्ञा दी जाती है। आकार प्रकार में शरीर से वे नर होते हैं, मनुष्य होते हैं, बट बिहेवियर में वे लाइक एन एनिमल कहे जा सकते हैं, पशु तुल्य। इसलिए नर पशु की संज्ञा शास्त्र उन्हें देते हैं। जैसे पशु तब तक कोई रिएक्शन नहीं करता जब तक उसके खाने पीने के मामले में कोई बाधा उत्पन्न न होती हो। जैसे ही कोई उसके अपने खाने पीने में बाधा उत्पन्न करता है तब वह रिएक्ट करता है। समाज का 90% वर्ग नर पशुओं की श्रेणी में ही आता है। जो जैसे पशु केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन तक सीमित होते हैं, ऐसे ही यह 90% लोग केवल अपना भोजन, केवल अपनी सुख सुविधाएं, अपने जैसी कोई संतान को जन्म देना, सोना और अंततः मर जाना, ये नर पशुओं का काम है। समाज के लिए बहुत घातक भी नहीं होते, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाते, समाज में उनका कोई अधिक योगदान नहीं हुआ करता। दूसरे होते हैं नर पिशाच। इनकी संख्या समाज में 1-2% होती है, परंतु ये समाज के लिए अत्यंत घातक होते हैं। इनमें कैपेसिटी बहुत होती है, मेहनत बहुत कर सकते हैं, बट स्वार्थ की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा होती है कि उनको सब कुछ अपने लिए चाहिए होता है। वे सब अपने लिए ही चाहते हैं और इसीलिए समाज के लिए बहुत घातक होते हैं। ये नर पिशाच कहलाते हैं। आकार प्रकार में तो नर होते हैं, लेकिन वास्तव में इनकी स्थिति समाज के लिए
अत्यंत भयानक स्थिति उत्पन्न करने वाली होती है। इसलिए इनसे समाज को बचाने की भी आवश्यकता होती है। तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो आज मेरे सामने हैं। शास्त्र इनको देव मानव कहता है। दीज आर रिसर्च स्कॉलर्स, जिनका काम है समाज को देना। इनकी भी संख्या समाज में 2-3-4% ही होती है। किसी समाज में ये थोड़े कम होते हैं, किसी में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। यह देव मानव ये रिसर्च स्कॉलर ऋषियों की तरह तप कर समाज के कल्याण के लिए रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च से समाज को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस दिशा में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। इनका समाज में बहुत आदर होता है, बहुत सम्मान होता है, ऋषियों की तरह पूजे जाते हैं। यही आगे चलकर प्रोफेसर बनते हैं। समाज में आचार्य को जो सम्मान प्राप्त है, इन रिसर्च स्कॉलर्स के कारण ही प्राप्त है। एक विषय को चुनकर उस विषय में अंदर तक जाते हुए अध्ययन करना और अध्ययन करने के बाद समाज के कल्याण के लिए उसमें से चीजों को बाहर निकालना। इस संसार सागर में गोते लगाकर मोती खोज कर लाना और उन्हें इस भारत माता को समर्पित कर देने वाले लोगों को कहा जाता है रिसर्च स्कॉलर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know you are not a general person, you are not a general teacher, you are a scholar। जिस क्षेत्र में आप कदम रखने जा रहे हो वह तपस्या का क्षेत्र है। तप से ही संसार में सब प्राप्त होता है और तप से पहले हमारे यहाँ योग की जो 8 सीढ़ियां बताई गई हैं। सत्य पहली सीढ़ी यम है और यम में 5 चीजें आती हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। रिसर्च के एथिक्स के लिए इन यम में से 2 का पालन बहुत आवश्यक है, सत्य और अस्तेय। ये 2 जो रिसर्च स्कॉलर फॉलो करेगा उसको ही पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। इसलिए तप के माध्यम से सत्य, मैं जो रिसर्च कर रहा हूं उसके आचार के मूल में है सत्य। पहला आचार है सत्य, यम का पालन करना, उस योग की पहली सीढ़ी। इसलिए पहली सीढ़ी के रूप में हमको रिसर्च में सत्य का आचरण करना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूं, जो मैं रेफरेंस दे रहा हूं, वे सारे रेफरेंसेज सत्य पर आधारित हैं। दर्शन के, फिलॉसफी के, रिसर्च की हमारी जो फिलॉसफी है वो हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय पर टिकी है। ये 4 ही चीजें हर दर्शन का प्राण हैं। इसलिए जितने हमारे रेफरेंसेज हों वे सारे के सारे सत्य पर आधारित हों। इसलिए अधिकतम स्टडी करना और रेफरेंस बुक्स को मैक्सिमम पढ़ना,
तपस्या है ना, कट कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। रिसर्च में, रिसर्च के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। श्रवण, मनन और निदिध्यासन। वेदांत में ऋषियों के लिए ये 3 सूत्र दिए गए। पहले सुनना, आज की भाषा में कहें तो पढ़ना, फिर मनन करना, और मनन करने के बाद फिर उसको अपने शब्दों में अपने ढंग से अभिव्यक्त करने का काम करना। जितना अच्छा अध्ययन होगा, जितना अच्छा श्रवण होगा, उतना ही अच्छा मनन होगा, और जितना अच्छा मनन होगा उतना ही अच्छा निदिध्यासन होगा। ऋषि बनना है तो उस परंपरा की ओर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शोध उसके बिना संभव नहीं होता। आपको जो डॉक्टरेट की उपाधि मिलने वाली है, हमारे यहाँ संस्कृत में स्नातक, परास्नातक और शोध उपाधि, ये 3 शब्द हैं। जब आप ज्ञान में नहा लेते हैं तब आपको स्नातक कहा जाता है, ग्रेजुएट। ज्ञान में स्नात, इसलिए स्नातक शब्द है, उसके लिए ग्रेजुएशन के लिए नहाया हुआ। जब उस एक पर्टिकुलर विषय में ही हो जाता है तब वह परास्नातक होता है, पोस्ट ग्रेजुएट कहलाता है। और जब उस विषय के अंदर की सारी चीजों को समझ लेता है तब डॉक्टरेट की उपाधि उसको प्राप्त होती है, तब डॉक्टर कहा जाता है। उसको जो शोध की उपाधि मिलती है हमारे यहाँ, उसके पीछे का अर्थ यह है उस विषय में अब उससे कुछ भी छूटा नहीं है। इसलिए जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाते हैं, जैसे जैसे इंटेंसिव होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा काम और अधिक तीव्र होता जाता है, प्रखरता बढ़ती जाती है, और तब उसके विविध पक्ष, विविध आयाम हमारे सामने प्रकट होते हैं। ये आयाम जैसे जैसे हमारे सामने आते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने उस कार्य को आगे बढ़ाते जाते हैं। इसलिए आज से ही ये चिंतन शुरू करना पड़ेगा, मुझे शोध के क्षेत्र में क्या करना है। अपना सब्जेक्ट चुनने से पहले इस दिशा में काम, अब तक उस टॉपिक पर किन किन लोगों ने रिसर्च किया है, सत्य ये पहला आचार है। ईमानदारी से एक ऋषि को सत्य का आचरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना भारत की मान्यता है। सत्यम वद धर्मम चर, यही उपदेश दिया जाता था। इस उपदेश के पीछे का बहुत बड़ा विज्ञान है। इसको जीवन में तपस्या करनी है, इसको जीवन में किसी को कुछ देना है, इसको देव मानव बनना है, उसके जीवन में सत्य प्रथम स्थान पर प्रतिष्ठित होना चाहिए। और सत्य जीवन में जब आ जाता है तब अस्तेय का पालन होता है। अस्तेय यानी चोरी न करना। आज आपके शोध को मजबूरी में उस स्टेज से गुजारना पड़ता है। टेक्निकली आपने किसी की नकल तो नहीं की है, इसके लिए आज विभिन्न उपकरण विकसित किए गए। उन उपकरणों की सहायता किसी की कॉपी की है तो कितने परिमाण में आपके शोध में नकल पाई गई, वो यंत्र बता देगा
और आपकी थीसिस रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए आपको शोध करते समय पहले दिन से ये ध्यान रखना पड़ेगा, अस्तेय का पालन करना। अस्तेय यानी चोरी न करना, अचौर्यम। किसी की मर्जी के बिना उसका कुछ भी चुराना नहीं। किसी के शोध की 2 लाइनें भी आपको नहीं चुरानी। जिनका उल्लेख आप करेंगे उसका संदर्भ देंगे। जिस पुस्तक से आप कुछ चीजें उठा के यहाँ रखेंगे उनके प्रकाशक का नाम देंगे, उसका पृष्ठ क्रमांक देंगे। चोरी नहीं करना है। मैंने इसको पढ़ा है, यहां से ये चीज मैंने ली है, जैसा का तैसा किसी को कोड करना है तो उसका पूरा संदर्भ हमको शोध में बताना पड़ता है। शोध के लिए हमने किन तरीकों को प्रयोग किया है, हमारी शोध की हमारी मेथडोलॉजी क्या है रिसर्च की, हमारे टूल कौन कौन से हैं, हमारे डाटा का कलेक्शन का तरीका क्या है, ये सारा का सारा हमको ईमानदारी से व्यक्त करना पड़ता है। जब एक बार शोध के विद्यार्थी को ये बात समझ में आ जाए, शोध उसके लिए आनंद का विषय बन जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है, इस रिसर्च में हमको आनंद प्राप्त होने वाला है। जो कट कॉपी पेस्ट करता है, डिग्री पाने के लिए रिसर्च करता है, एपीआई के लिए रिसर्च करता है, वह शोध में आनंद नहीं ले सकता। और आनंद प्राप्ति ही रिसर्च की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे जैसे शोध करते करते उसे कोई नई चीज प्राप्त होती है, वह आनंद से उछल पड़ता है, मिल गया, यूरेका यूरेका, हमने सबने सुना है। ये स्थिति हर शोधकर्ता की होती है। संसार की सबसे बड़ी प्राप्ति वही है। हम जिस प्रॉब्लम को लेकर चले थे, हमने जिसके लिए सारे लोगों ने अब तक जो काम किया है उसको पढ़ा है, सारे टूल्स का यूज किया है, प्रॉपर मेथोडोलॉजी यूज की है, इतने सारे धक्के खाए हैं, इतना समय और श्रम लगाया है, उसके बाद हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते। महात्मा बुद्ध का उदाहरण अगर लें, महात्मा बुद्ध घर से किस रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर निकले थे, हेय क्या है। चारों ओर जब उन्होंने देखा प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, इसलिए वो घर छोड़ के निकले। और घर छोड़ के निकले, 6 साल तक निरंतर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद ये चारों बिंदु उनको ध्यान में आए, उनका रिसर्च कंप्लीट हुआ, जिसको बौद्ध साहित्य में चत्तारि आर्य सच्चानी कहा जाता है, 4 आर्य सत्य। हेय उन्होंने क्या पाया, व्हाट इज अनडिजायरेबल, उन्होंने पाया दुख। पहला आर्य सत्य दुख है, ये अनडिजायरेबल है, दुनिया में कोई दुख नहीं चाहता। फिर इसका हेय हेतु क्या है, रिसर्च के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, तृष्णा, डिजायर इसका कॉज है। हम डिजायर करते हैं, डिजर्व नहीं करते, डिजायर करते हैं, पूरी नहीं होती, इसलिए दुख होता है। तो दुख हेय हेतु डिजायर यानी दुख समुदय। और तीसरा आन क्या है, डिजायरेबल क्या है, दुख निरोध। हर आदमी चाहता है उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आए। तो ऐसी स्थिति को पाने के लिए हानोपाय क्या है, तो हानोपाय उनको मिला रिसर्च करते करते अष्टांगिक मार्ग, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 8 अंगों को जो फॉलो कर लेगा उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा,
जिस क्षण उनको यह पता चला, ठीक उसी समय वे प्रसन्नता से उछल पड़े, प्राप्त हो गया जीवन का ध्येय। इसको कहते हैं बोधत्व की प्राप्ति। इस वृक्ष के नीचे हुई वो बोधि वृक्ष कहलाया, इस गया में हुई वो बोध गया कहलाई, जिनको हुई वो बुद्ध कहलाए, और वह ज्ञान बोधत्व कहलाया। शोध में इसी बोध को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। इसलिए आचार की दृष्टि से सत्य और अस्तेय इन दो व्रतों का पालन रिसर्च स्कॉलर के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह तप है। बिना तपे, बिना आचार का पालन किए हमको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी। संसार में केवल उनको ही जाना जाता है जिन्होंने जितनी कठोरता से तपस्या करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आज पूरा देश नीरज चोपड़ा जी के गोल्ड मेडल पर आनंद से भरा हुआ है, परंतु उसके पीछे का उनका जो परिश्रम है वही इस सफलता का मूल कारण है। अपने गाइड की आज्ञा का पूरा पालन करना, उनको पूरा सम्मान देना और पहले दिन से यह तय करना, मैं इस भारत माता के लिए रिसर्च स्कॉलर के रूप में कुछ न कुछ ऐसा शोध करूंगा या करूंगी जिससे उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। उस शोध से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष पॉलिसी के रूप में इस देश में लागू किए जा सकें, साधन बनाकर उनका प्रयोग किया जा सके, नए स्कॉलर वहां से शोध की नई दृष्टि प्राप्त कर सकें। पहले दिन से निरंतर इस दिशा में चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बनके कोई बहुत अच्छा रिसर्च कर पाएंगे जिसके लिए सदियों तक हमको याद किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने यह जो प्रयत्न किया है, आपको जोड़कर पहले ही दिन इस कोर्स से जोड़ा है, आपको क्या करना है ये दिशा देने के लिए दोनों वाइस चांसलर्स आपके बीच में उपलब्ध हैं। मेरे जैसे साधारण विद्यार्थी को इतने बड़े स्कॉलर्स के बीच आने का अवसर देने के लिए मैं वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के सारे अधिकारियों का आभारी हूँ। आपको जो अच्छा लगा हो वो सब ऋषियों का है, उनको धन्यवाद देना। जो खराब लगा हो वो व्यक्ति के रूप में दोष मेरा है, मुझे क्षमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, प्रणाम। Thank you, sir, for your insightful remarks. हमें यह यकीन है कि आपने जो बात की उससे रिसर्च स्कॉलर्स की रिसर्च को एक नई दिशा मिलेगी. And you talked about how research should be useful to the society and why researchers are not ordinary individuals as they contribute in the development of society. बहुत बहुत धन्यवाद सर. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए it is my honest pleasure to have got this opportunity to introduce the guest of honor of today's function, Dr. Ami Upadhyay ma'am, Honorable Vice Chancellor, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Gujarat. Her interest in art and literature make her academic and administrative leadership more successful. She has keen interest in women's empowerment and social welfare, for which she works with various national and international organizations. She is the member of various committees constituted by Ministry of Education, Government of India, University Grants Commission, Association of Indian Universities, NAC, Education Department, Government of Gujarat and other institutions of regional, national and international importance. May I take this honor of inviting her for her address as guest of honor of today's function. Ami ma'am, please.
Thank you, Dr. Sunil Shahji. It's really a matter of pleasure and privilege to address the research scholars who are starting their journey today for a wonderful job, I would say. And rather than, I would say, contributive to some academics, I would say the journey to be cherished. Every moment of research journey should be cherished. Honorable Vice Chancellor of South Gujarat University, डॉक्टर चावड़ा जी, जिन्होंने अभी अभी अद्भुत वक्तव्य दिया है और रिसर्च को एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखा है, ऐसे परम आदरणीय उमाशंकर पचौरी जी, द फैकल्टीज प्रेजेंट हियर एंड द रिसर्च स्कॉलर्स. व्हाट आई फील, उमाशंकर जी ने इतने सरल ढंग से, इतनी अच्छी तरह से एथिक्स को, अनुसंधान को लेकर रखा है कि जैसे कुछ बातें करनी बाकी रहती ही नहीं. आई वुड बी टॉकिंग अ लिटिल बिट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मैं थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से, दृष्टिकोण से बात करना चाहूंगी और ज्यादातर ऐसे, दिस इज अ फैमिली. आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट दैट साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज एन एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी. So in that case, I would be sharing some of my personal experiences also related to research. पहले, research is related to the problem or we may call it a question. तो research, very layman's definition, that we search something. हम कुछ ढूंढते हैं. Research means हम कुछ फिर से ढूंढते हैं. Now when we search something again, that means we are convinced about the need of that, necessity of that. जब हम फिर से सर्च करते हैं तो वहां हम जिसकी हम शोध कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, वो जरूरी है, उसके लिए हम कन्विंस्ड है. दैट्स व्हाई वी हैव चोजन दैट टॉपिक. सो पहले तो रिसर्च, publication is always a part of research, be it be presentation, publication, but they are research, they're parts of research. So first of all, we should be very clear about the research. Why should research be a part of education? वो academic का एक हिस्सा क्यों होना चाहिए? अनुसंधान, संशोधन, research, academics का हिस्सा क्यों होना चाहिए? I may study literature, मैं इतिहास पढ़ लूं, भूगोल पढ़ लूं, मैथमेटिक्स पढ़ लूं या सोशियोलॉजी पढ़ लूं, उसका इतिहास और भविष्य सब कुछ रिसर्च क्यों करना? Why research? तो पहले I would say कि let us visit some very famous, internationally oft-quoted definition of research education. The process of living, John Dewey, who is very repeatedly quoted, just his definition. The process of living through a continuous reconstruction of experience. It is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities. अब देखिए, इस definition को हम देखें तो एक व्यक्ति के जीवन में कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं. हमारा कल जो अनुभव था उससे आज का अनुभव अलग है और आज के अनुभव से कल का अनुभव अलग होगा. तो हम जब अलग अलग अनुभव से किसी एक धारणा पर आते हैं, आई एम रिमाइंडेड ऑफ गांधी जी. गांधी जी और ओशो दोनों को सेम एक बार सवाल किया गया था अलग अलग समय पे. गांधी जी को बोला कि आपने जो कहा था सत्य और कल का और आज का ये दोनों सत्य अलग अलग है, तो ऐसे कैसे हो सकता? गांधी ने कहा अगर आपके सामने मैंने दो सत्य रखे, एक कल का था और एक आज का है, तो मेरे आज के सत्य पर ध्यान दीजिए क्योंकि वो कल के बाद हुए अनुभव से बाहर आया हुआ है. आई थिंक दिस इज अ वे एट लुकिंग एट रिसर्च फ्रॉम वेरी लेमैन्स पर्सपेक्टिव. ओशो को वही सवाल किया गया था कि एक बार आपने ये बात कही, दूसरी बार ये बात कही, बोथ ऑफ देम आर कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी, तो हाउ डज इट हैपन? एंड ही रिस्पोंडेड, देयर आर मल्टीपल्स विद इन मी, देयर आर मल्टीपल्स विद इन मी. नाउ यू सी, दिस इज टू बी अंडरस्टूड. पचौरी जी ने बहुत खूबसूरती से कहा कि शिक्षण समाज या
राष्ट्र के परिवर्तन के लिए होता है, संशोधन उसके लिए होता है। तो कई बार ऐसा होता है that we pass through the experiences and at the end of the experiences we come to realize certain things that may help us in future also. चावड़ा जी, I would like to share here कि जब in my starting career, मेरी शुरुआत की जब करियर थी, I was a lecturer, newly joined lecturer, and तो हमारे वहाँ एक बहुत अनुभवी सीनियर शिक्षक फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए आए थे। तब उन्होंने कहा था कि आपने आज जो रिसर्च किया वो 20, 25, 50 साल के बाद भी आपके लिए बस उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, उतना ही सच होना चाहिए, उतना ही सही होना चाहिए। तो मुझे उस समय जो सवाल आया था, मुझे लगता है आज भी मैं आप सबके सामने वो सवाल रख रही हूँ। मैं सवाल इसलिए रख रही हूँ क्योंकि भारत की शिक्षण जो प्रथा है वो गुरु शिष्य परंपरा में हमेशा से सवाल रखे जाते हैं, जवाब नहीं रखे जाते। तो वही सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ आज कि अगर आज मुझे जो सही लगता है कि ये प्रश्न का जवाब ये है और मैंने ये संशोधन किया, 10 साल के बाद अगर संशोधन उतना ही सच रहा, या तो समाज, राष्ट्र या परिस्थिति, समय नहीं बदला या मैं नहीं बदली। What I feel is that after 10 years, when we grow, we realize आज मेरी पीएचडी की थीसिस, एमफिल की थीसिस और मेरे 5 साल 10 साल पहले लिखे हुए रिसर्च पेपर मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, इससे ज्यादा काफी कुछ इस दिशा में काम करना बाकी है। अभी मैं लिखने बैठूं तो काफी कुछ अलग बाहर निकल के आएगा। What I want to prove here is कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये गंतव्य स्थान नहीं है। जैसे पचौरी जी ने बताया कि ये सिर्फ आपकी पीएचडी की डिग्री के लिए कि संशोधन की बात नहीं है, संशोधन एक प्रक्रिया है। जैसे शिक्षण एक कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट। और लास्ट में जूही जी क्या कहते हैं, दैट enables individual to control his environment, अपने आसपास के वातावरण को कंट्रोल करना और मुझमें जितनी भी संभावनाएं हैं उसको फुलफिल करना। अब संभावनाएं रिसर्च से लेके हो सकती है। अब देखिए, भारत में कंट्रोल की जब बात आती है, सर ने जैसे बताया, यहाँ बुद्ध का अभिगम होता है, राम का अभिगम होता है, कृष्ण का अभिगम होता है। कंट्रोलिंग डज नॉट मीन चेंजिंग एवरीथिंग अराउंड अस। Many a times controlling means not getting affected by. That is also research. So this is to be understood. When UNESCO defines education says organized and sustained instruction designed to communicate a combination of knowledge, skills and understanding. जहां पर नॉलेज है, ज्ञान है, स्किल्स है, कौशल है और समझ भी है, लेकिन किसके लिए? तो वैल्यूएबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज इन लाइफ। अब देखिए, हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च क्या जीवन के सारी जो हम एक्टिविटीज करते हैं, जो कुछ भी करते हैं जीवन में, वहां कहीं उपयुक्त हो रहा है? इफ इट इज नॉट यूजफुल, वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। हमें सवाल करना चाहिए। तो पहली बात ये कि एजुकेशन का पार्ट इसलिए है क्योंकि जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, संभावनाओं की बात करते हैं, आई रेड समवेयर इन द चैट बॉक्स टू speak in Hindi and English. That's why I've continued in Hindi and English. Otherwise, maru Gujarati is saras se, so I can use Gujarati also. But in chat box somewhere I read that Hindi and English would be more preferable. इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश का ज्यादा उपयोग कर रही हूँ। तो पहली बात तो शिक्षण का, इसलिए कि शिक्षण का परम ध्येय है वो सामाजिक राष्ट्रीय परिवर्तन है, सकारात्मक परिवर्तन है। तो इसीलिए रिसर्च से कैसे हम सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं वो जरूरी है। काफी टाइम ऐसे हम सुनते हैं दैट रिसर्च, सर्च, अनुसंधान, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन ऑब्वियसली रिसर्च का एक पार्ट होती है। इन्वेंशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ रिसर्च। Necessity is the mother of invention. I very humbly disagree to that. No, necessity was never mother of invention. It was जैसे कृष्ण की 2 माताएं थी, ऐसे ये इन्वेंशन की भी 2 माताएं हैं। Curiosity and creativity, they are the mothers of invention.
रिसर्च में आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं आप सबको बताऊं, जब मैं छोटी थी हमारे घर में पहली बार फोन की घंटी बजी थी, इतनी क्यूरियोसिटी ये कैसे आता है, कैसे होता है। व्हेन माय डॉटर वाज टू यंग, शी वाज टू स्मॉल, तो वो मैं जब किचन में काम कर रही थी तो उसने कितनी बार फ्रिज खोला बंद किया, फ्रिज खोला बंद किया, शी वाज टू यंग। मैंने बोला क्यों ऐसा कर रही है, तो उसने बोला मम्मा पता नहीं, ये जब मैं फ्रिज का वो डोर बंद करती हूँ तो अपने आप ये लाइट बंद हो जाती है। जब पुराने वाले फ्रिज थे उसमें ऐसे एक वो ट्रिप आती थी, आप ऐसे बंद करो तो वो प्रेस होगी और वो बंद हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि 3 बार तू ऑब्जर्व करके फिर से खोल बंद कर। उसने किया, फिर मैंने बोला समझ में आया। तो शी वॉज हार्डली आई थिंक 5-6 ईयर्स, तो उसने वो क्वेश्चन मार्क के साथ मेरे सामने देखा कि नहीं। फिर मैंने उसको ये समझाया कि देखिए ये मैंने बंद किया तो ये हुआ, ये देखो 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 ये प्रेस हो गया तो लाइट बंद हो गई, ऐसा होता है। फिर मैंने बोला डिड यू सी योर मामा हैज सो मच ऑफ विजडम। तो उसने जवाब दिया हाँ माँ वो ठीक है, लेकिन ये नॉलेज विजडम नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। जो सबको पता है वो अगर आपको पता है वो इंफॉर्मेशन हुई, लेकिन जो सबको पता नहीं है और वहां तक आप पहुंचते हो तो वो नॉलेज हुआ, तो वो विजडम हुई। आई थिंक रिसर्च में हमें ये भी सोचना है कि व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इज दैट इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। अगर अनुसंधान या संशोधन का गंतव्य स्थान अगर ज्ञान है, नॉलेज है या विजडम है, क्योंकि हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में विजडम को ज्यादा महत्व दिया जाता है, नॉलेज से भी ऊपर है। तो अगर संशोधन का गंतव्य स्थान वहां पर है तो हम वो नॉलेज या विजडम तक पहुंचे। आप में से काफी लोग या तो अध्यापक होंगे या अध्यापक बनना चाहते होंगे। अगर आज आप क्लास में जा रहे हैं तो हमारे जमाने में ये एक आई वुड फ्रेंकली शेयर इट कि पहले जब हम विद्यार्थी थे तब कितनी डाइजेस्ट गाइड्स वगैरह अवेलेबल थी, तो अगर वो आपके पास और टीचर्स के पास है तो आप और टीचर दोनों एक से ज्ञानवान हैं। और अब तो कभी बच्चे हैं दे आर मोर टेक्नो सेवी, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। हम फैकल्टी ज्यादा सीधा गूगल में जाते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि गूगल में जो होती है वो माहिती सही नहीं होती, आपको इस जर्नल्स में या इसमें जाना चाहिए, वहां माहिती, तो दे नो मोर देन अस। तो फिर अगर हम उन्हें गाइड करेंगे या वो हमें गाइड करेंगे। तो इसमें इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रियलाइज कि जब तक हम में क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा वृत्ति है, तब तक हम तल तक जाएंगे, प्रश्न के हल तक जाएंगे। ये जरूरी है। तो आप पहले तो क्यूरियोसिटी है तो हम एंजॉय करते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो पूछते हैं ये बादल कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, ये पानी कहाँ से लाते हैं और कब कैसे खत्म होता है, कैसे पता। कितने सवाल करते हैं, कितने सवाल करते हैं। और हम बड़े हो जाते हैं तो हम खराब हो जाते हैं। मुझे लगता है पचौरी जी, संशोधन अगर 6-7 साल के बच्चों को दिया गया विषय तो वो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि उनके पास सवाल बहुत होते हैं और सवाल इतने अच्छे होते हैं और अंदर से इतने जवाब की एक थर्स्ट होती है कि वो अपने आप रिसर्च सर्च सब कुछ कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए वो हाउ वो डिसअपियर हो जाता है। अगर आपके अंदर ये प्रश्न ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ऐसे चालू रहेगा, आप जीवन के अंत तक एक रिसर्च स्कॉलर रहेंगे। एंड आई वुड से दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। सो पहली बात ये क्यूरियोसिटी, देन क्रिएटिविटी। National education policy focuses a lot. I'm being a classical dancer, as Sunil ji introduced me. I always feel there is something newness in every day. Something new. Whenever I read a poem, when I read a piece of literature, maybe some news, when I have 4 or 5 newspapers in front of me every day, I compare the headlines. मुझे वहां भी research दिखता है. Because you have to develop your way of looking at things. रेफरेंस बुक से नहीं चलता। किसी भी चीज को देखने के लिए आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। हर रोज कुछ नया। बड़े हो जाते हैं तो जीवन में कुछ नया होता ही नहीं, नया कुछ होता ही नहीं है। जीवन जीवन है ही नहीं अगर नया नहीं होता।
मुझे लगता है हर रात को सोते टाइम ये कुछ नया हुआ। जिसके जीवन में ये दृष्टिकोण है वो रिसर्च कर पाएगा, वरना आई एम सो सॉरी, रिसर्च छोड़ दीजिए, भले छोड़ दीजिए आप। सो पहली बार 2 साल में खत्म करना है, 2 साल में खत्म करना है, अरे खत्म करने के पीछे मत पड़िए, एंजॉय कीजिए। और आज मैं कहां तक पहुंचा, जितने भी गुजराती लोग जुड़े हैं, आई एपोलोजाइज द नॉन गुजराती हियर। હું એક સરસ ગુજરાતીમાં એક દાખલો આપું તમને કે છે ને બધા લોકો પત્ની ઉપર જોક્સ કરે, એટલે મને થયું કે આજે ચલો હું જ કરું, ટુ શો ધેટ સ્પિરિટ that if you have smile on your face, we are happy with that. પત્ની પૂછે કે આજે જમવામાં શું કરશો તમે, શું ખાશો? તો કે ઢોકળા બનાવો. તો કે ઢોકળા તમને સત્તા નથી, એ નહીં ખાવાના. તો કે તો રોટલો અને ઓળા બનાવો. તો કે ઓળામાં તેના રીંગણા બહુ સારા નથી આવતા, રહેવા દે ને. બસ કે તો એક કામ કર કે અડદની દાળ ને એવું બધું કર, લસણની ચટણી. દાળ એ અડદની છે નહીં ઘરમાં. છેલ્લે કે તમને ફાવે એ કરી દો, બાકી મેં ઢોકળાનું તો પલાળેલું રાખ્યું જ છે. એટલે આપણે ઘણી વખત પીએચડી એવું કરીએ છીએ કે જે પલાળેલું રાખ્યું છે ત્યાં સુધી જ પહોંચવાનું છે. I have seen some people getting disappointed that my hypothesis like this, I really predicted that the result will be that. Oh my God, that is not result. Oh my God. Arre Baba. So, it is very important to understand કે આપણે ઢોકળાનું પલાળીને 10 ઓપ્શન માટે નથી નીકળ્યા આમાં. So that is to be understood. So curiosity and creativity. Be creative. क्रिएटिव मीन्स आप किसी भी चीज को देखते हो तो वो नजरिया क्रिएटिव होना चाहिए. अब देखिए, ऊपर से जब न्यूटन के पास वो एप्पल गिरा था तो वहां क्या उसकी नेसेसिटी थी कि वो गुरुत्वाकर्षण का नियम ढूंढने जाता? नॉट रिक्वायर्ड. इट वॉज क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी. तो पहले क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी होने चाहिए. चावड़ा जी, सालों पहले मैंने वो कथक में भी, मेरे पास शिक्षा विशारद थे और इस तरफ एमए विद इंग्लिश भी था. I wanted to go for interdisciplinary research, कि जहां पर मैं कथक को, इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स, दैट इज इंडियन क्लासिकल डांस एंड लिटरेचर, दोनों को साथ में लेकर मैं कुछ अच्छा सा रिसर्च कर सकूं. टू whomsoever I approached, very great teachers, इतने अच्छे टीचर्स. तो आई एम टॉकिंग अबाउट 98, 99 एंड देन 2000. तो एवरीबडी अप्रिशिएट के वाह वाह क्या बात. मैं टाइटल लेके गए, सबने अप्रिशिएट किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. But unfortunately, what happened that they said कि हाँ लेकिन हम इंग्लिश के हैं. Excuse me, I would request to mute the other participants. Kindly mute your phones. Yes. उस टाइम पे इतने साल पहले यही हुआ कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है. अब देखिए, आई एम सो हैप्पी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टॉक्स अ लॉट अबाउट मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज. नाउ यू सी cross-disciplinary research, interdisciplinary research, intradisciplinary research, multidisciplinary research. I'm not supposed to speak about that. Otherwise, I would take full 1 hour for this, because these are very close to my heart. ये सारे अलग-अलग प्रकार के रिसर्च है. And now national education policy talks about it. लेकिन उसके लिए हमें व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी. अनफॉर्चुनेटली 2 साल पहले मेरी एक विद्यार्थिनी को कथक और इसमें लिटरेचर में करना था, एंड शी अप्रोच्ड वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन गुजरात. टॅपटी म्यूट केलं तुम्ही. मे आई रिक्वेस्ट संदीप वालेकर जी टू म्यूट हिज माइक प्लीज. So after these many years also, somewhere unfortunately we are standing at the same place. पहली बात तो जब हम रिसर्च संशोधन की बात करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी इंट्राडिसिप्लिनरी की बात करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ज्ञान का कोई भी क्षेत्र बड़ा या छोटा नहीं होता. आई रिमेम्बर 10 साल 20 साल मेरे नौकरी के में, इफ आई हैव अ ग्लैंस ओवर इट, तो मेडिकल सबसे अच्छा होता है, इंजीनियर उससे नीचे होता है, फिर साइंस उसके नीचे होता है, कॉमर्स मैनेजमेंट इसके नीचे होता है, देन आर्ट्स होता है. आर्ट्स में भी इंग्लिश बहुत अच्छा होता है और गुजराती असम. यू सी, अनफॉर्चुनेटली विद दिस वेरी shallow mentality, we are talking about multidisciplinary और interdisciplinary research. ये नहीं होगा.
आप सोचिए हमारी यूनिवर्सिटीज में हम कितने लोग अपने साइंस या कॉमर्स वाले के साथ बैठ के काम करते हैं। एथिक्स की जब बात आती है, जब देखिए आपको क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी है ना, तो अब अपना ओरिजिनल करेंगे, फिर एथिक्स के बारे में हमें चिंता ही नहीं करनी। क्यों? बिकॉज यू आर मूविंग फर्दर विथ योर क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। इस दोनों के साथ जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप किसी का क्यों लेंगे? वाई वुड यू कॉपी, वाई वुड यू बोरो? गेटिंग इंस्पायर्ड इज अ डिफरेंट थिंग, बट ऑब्वियसली वी विल नीदर इमिटेट नॉर कॉपी। अब जब देखिए कोरिया जैसे, जापान जैसे कंट्री में इतने ऑफबीट कोर्सेज है, वन कैन नॉट इमेजिन, थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज, वंडरफुल। अब इंडिया में हमने शुरू किए, क्यों? इसीलिए ये कोर्सेज की जरूरियात है, क्योंकि जैसे संशोधन है प्रोग्राम से, उसमें कुछ ऑफबीट करना है, आगे जाके कुछ करना है, नॉट द सेम थिंग। ऐसी हमारे वहां हमने गार्गी सेंटर फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विमेन हमने खोल के रखा है, और हमारे उसके लिए हमने एडवर्टीजमेंट भी दी थी। बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस आए अक्रॉस इंडिया, इवन देयर वर प्रपोजल्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज ऑल्सो। भारत से राउंड अबाउट 13 से 14 स्टेट से बहुत अच्छे प्रपोजल्स आए थे। बट व्हेन आई वाज हैविंग अ ग्लांस ओवर द रिसर्च प्रपोजल्स एंड टाइटल्स, मुझे ऐसा लगा कि अभी तक हम संशोधन को जीवन तक नहीं ले जा पा रहे। संशोधन को जीवन तक जाना है। अगर अनुसंधान जीवन से मिलता नहीं है तो वो अछूत रह जाएगा और परिणाम में वो निष्फल हो जाएगा। आप अपने हाइपोथेसिस, मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वहां तक पहुंच गए, लेकिन अनुसंधान का जो गंतव्य स्थान है, वो जहां तक पहुंचना है वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। अब देखिए, इतने सालों पहले 1963 में पॉपर जी ने क्या कहा था? ही सेज वी आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ सम सब्जेक्ट मैटर but students of problems, and problems may cut right across the borders of any subject matter or discipline. तो पहले तो अनुसंधान के लिए हमें सोचना चाहिए कि मैं अंग्रेजी विषय की हूं, आप संस्कृत के हैं, आप मे बी फिजिक्स के और केमिस्ट्री भूल जाइए। हम सब ह्यूमन बीइंग है, एंड वी माइट बी फेसिंग द सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू नो वी मे ट्राई टू सॉल्व टुगेदर। तो पहले ये दृष्टिकोण हमें डेवलप करना है। दूसरी बात, जब एथिक्स की बात आती है पब्लिकेशन में और रिसर्च में, तो प्रॉब्लम जब ओरिजिनल होगा तब उसके सॉल्यूशंस ऑब्वियसली कॉपी किए होंगे नहीं होंगे। बिकॉज हाउ मेनी पीपल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। हम इसीलिए जब टाइटल हम शोधते हैं, जब फाइनल करते हैं, तो वी विजिट इनफ्लिपनेट भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, वहां भी, दैट द टाइटल इज नॉट गेटिंग रिपीटेड। Why do we have a glance? The title is, because if the title is not getting repeated, we are coming with something very new, then obviously there won't be any problem with plagiarism or the question against your originality. और दूसरी बात क्या है, आप में से काफी लोग या तो शिक्षक, स्कूल में शिक्षक होंगे या स्कूल में शिक्षक बनने वाले होंगे। तो आपके ध्यान में एक बात रखो कि आपकी स्कूल में, मैं दक्षिणामूर्ति गिजुभाई बधेका की स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, और आई वुड से कि वॉट एवर आई एम, दैट स्कूल हैज प्लेड वेरी वाइटल रोल। मेरी माताजी ने 27 ईयर्स उस स्कूल में मॉन्टेसरी सिस्टम से पढ़ाया है, और घर में हम लोगों को भी ऐसे ही बड़ा किया है। तो हमें जो पढ़ाया गया वो विश्व की सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें। इन माई स्कूल टाइम इन प्राइमरी, मैंने टैगोर और शरद ग्रंथावली पूरी गुजराती, बिकॉज आई हैव स्टडीड थ्रू आउट इन गुजराती मीडियम। मैं गुजराती माध्यम की एक स्टूडेंट रही हूँ, मीडियम की, तो मैंने वो सारी गुजराती में पुस्तकें पढ़ ली थी। हमारे घर में एक अलग से वातावरण था, तो पूरा वहां सब्जेक्ट में पेड़ पे चढ़ना, पेड़ से कूदना, रात को वहां रहना, सबके साथ छोटे छोटे बच्चे, हम कुक करते थे, हम क्लीनलीनेस मेंटेन करते थे। तो दोज वर द सब्जेक्ट्स। तो हमें, आप लोग स्कूल में हैं तो कहाँ क्रिएटिविटी आपको पढ़ाई गई है, कहाँ क्यूरियोसिटी आपको पढ़ाई गई, और कहाँ आपको ओरिजिनलिटी पढ़ाई गई। हम छोटे हैं तब कहते हैं कि आप विवेकानंद जैसे बनो, आप गांधी जैसे बनो, आप सचिन तेंदुलकर के जैसे क्रिकेट खेलो, और अमिताभ बच्चन के जैसे एंकर करो। नहीं नहीं, हमें कहना चाहिए बेटे आप जैसे हो ना, आप संपूर्ण रूप से आप बनकर बाहर आओ, आप अपने व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से निखारो। अगर हम वहीं से, हम कहते हैं कि विवेकानंद जी से हम ये सीखे,
हम अमिताभ जी से ये सीखे, हम भगवान राम से ये सीखे, हम कोई और बनने के लिए नहीं बने। राम भी राम, तो फिर राम क्यों कुछ और नहीं बने? वो भी तो वशिष्ठ बन सकते थे। 10 अवतार है तो 10 अवतार एक ही क्यों वो अलग 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 बने? वो भी कहते हैं, दशावतार भी कहते हैं कि आप अगर मत्स्य है, फिर कुर्म है, फिर वराह है, ये सब आप चलते जाते हो, नरसिंह है, चेंज आता है। ऐसे ही रिसर्च अनुसंधान में परिवर्तन जरूरी है। आप पहले अवतार से बीच में बलि भी आते हैं, बीच में नरसिंह भी आते हैं, जो आधे पशु और आधे नर है वो भी आते हैं, और आखिर में वो बुद्ध बनते हैं। बुद्ध, देखिए, अनुसंधान भी परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसलिए कहीं रुक कर आपको ऐसा लगे कि मेरे पीछे वाला अनुसंधान मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो आप सही दिशा में। आपका वो अनुसंधान गलत नहीं था, लेकिन आपकी दिशा सही। एथिक्स के बारे में पचौरी जी ने इतनी अच्छी बातें की थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर लूं। आई एम वेरी थैंकफुल टू साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी टू इनवाइट मी टू शेयर माय व्यूज ऑन दिस। वैसे तो गेस्ट ऑफ ऑनर को ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए। आई वॉज इवन वंडरिंग कि गेस्ट ऑफ ऑनर इज सिंपली टू विश ऑल द बेस्ट एंड ब्लेस द रिसर्चर्स, पर टाइम लाइन मैंने देखी तो सोचा ज्यादा है, तो लेट अस शेयर माय व्यूज। बट इट वॉज रियली गुड फीलिंग। एनीवेयर इन योर रिसर्च जर्नी, आपकी संशोधन यात्रा में कहीं भी व्यक्तिगत स्वरूप से मैं या हमारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी कहीं भी आपको मदद कर सकती है, विल बी ऑलवेज देयर विथ यू। ये साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, रियली डूइंग वेरी वेल, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द रिसर्चर्स कि आप ये अपनी यात्रा का एक एक क्षण क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी से भर दीजिए एंड चेरिश द जर्नी। मेनी अ टाइम्स आई थिंक ऑल द सीनियर्स विल अग्री टू दैट कि काफी टाइम वहां पहुंच के इतना आनंद नहीं आता अपने गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन पे जाके, जितना यात्रा में जर्नी में होता है। आई रियली विश दैट surely you will reach to your destination, but I wish that your journey of research should be very fruitful and cherishing, enriching every moment. Thank you very much. All the best. Thank you very much, ma'am. It is always a pleasure listening to you. We are grateful to you for providing insights to the prospective research scholars and explaining importance of research with a focus on curiosity and creativity. And जैसे आपने बात की जीवन के बारे में, रिसर्च जीवन से कनेक्टेड होना चाहिए. It should be important to the society. So we are grateful to you, ma'am. Thank you so very much. Throughout the centuries, there were men who took first steps down new roads, armed with nothing but their vision. We are fortunate indeed to have amongst us today one such person who has inspired countless number of people with the strength of his vision. It is indeed with great pleasure that I now invite our dynamic Vice Chancellor, Honorable Dr. K.N. Chowda sir, to deliver his presidential address. Chowda sir, please. આપણે સૌને પ્રણામ. अपनी यूनिवर्सिटी अपना गौरव, अपनी यूनिवर्सिटी वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के ये रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स के बारे में आज अपने साथ जुड़े हुए डॉक्टर उमाशंकर वचोरी साहब, अपने ही हेड फिलोसोफर और गाइड डॉक्टर अमीबेन उपाध्याय जी, अपनी यूनिवर्सिटी की इंचार्ज कुल सचिव डॉक्टर जयदीप भाई चौधरी जी, डॉक्टर सुनील भाई, डॉक्टर राजेश भाई, डॉक्टर प्रवीण भाई, प्रिंसिपल डॉक्टर हेमाली बेन, डॉक्टर भावेश भाई, डॉक्टर मेहुल भाई और हमारे सभी परिवार के सदस्य। जैसे डॉक्टर अम्मी बेन ने बताया कि जीवन में
बहुत सारे पहलू होते हैं, किसी एक पहलू को सुलझाना है, उसी को रिसर्च को भी हम पीएचडी कह सकते हैं क्या? दूसरा जो है, जैसे डॉक्टर उमाशंकर जी ने भी बताया, डॉक्टर अमीबेन ने भी बताया, हम जो रिसर्च करते हैं वह रिसर्च सही मायने में अपने समाज के लिए मायने रखता है क्या? सिर्फ अपने लिए रखता है कि बाकी लोगों के लिए? हम सब जानते हैं, हमारे जितने भी पीएचडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको तो ये एडमिशन मिला है, उसीलिए अपनी यूनिवर्सिटी की ओर से सबको हम अभिनंदन भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पीएचडी का एडमिशन नहीं हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, उनके लिए भी ये संदेशा है कि आप आगे की जो नए दौर आएंगे उसमें हम आपके लिए जरूर कोशिश करेंगे। दूसरा है, हम सब जानते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी गुजरात में सबसे ज्यादा एकड़ में यानी 210 एकड़ में फैली हुई है। तो बहुत सारी एवेन्यूज भी है, बहुत सारे रिसोर्सेज भी है। अगर आपके पास अगर ऐसा कोई विजन हो, खास करके एनवायरनमेंट को लेके, उस पर भी आप सोचिए। और भी आप जानते हैं कि बुलेट ट्रेन जो है वो सबसे ज्यादा जो उनके लिए जो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से लेकर बॉम्बे तक है। पर हम सब जानते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी का एरिया जो है वो बड़ौदा से दमन तक है, उसके बारे में आप सोचिए। दूसरा ये हम भी जानते हैं कि अपने यहाँ सूरत शहर में मेट्रो भी शुरू हो रही है, उनका सोशल इम्पैक्ट क्या है, बुलेट ट्रेन का सोशल इम्पैक्ट क्या है, वो भी इसके बारे में आप सोचिए। इससे आगे आप हम जाएंगे तो जानते हैं कि दिल्ली कॉरिडोर है, वो जो बड़ौदा सेंटर होते हैं और मुंबई तक पहुंचती है ट्रेन। तो आप सब जानते हैं कि गुजरात का पूरा एरिया जो बड़ौदा से दमन तक जो रेलवे कॉरिडोर है, जो भारत का इतिहास ट्रांसपोर्टेशन में चेंज करेगा, उसके बारे में आप रिसर्च कीजिए, ताकि ये जो रेलवे कॉरिडोर है उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या होगा, उनका वो कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, तो पूरा आप सोचिए। इससे ही आप जान सकते हैं कि डायमंड जो है पूरे एशिया में सबसे बड़ा डायमंड बूस बन रहा है। हो सकता है कि अगले साल उनका इनॉग्रेशन हो जाएगा। उसके बारे में भी सोचिए कि इनके बहुत सारे डायमंड का पहलू है कि भारत में सबसे ज्यादा वो जो पॉलिश करना है उसके बारे में अलग अलग करना है, उसके बारे में सूरत सबसे ज्यादा लीडिंग सिटी है। और भी आगे जाते हैं तो टेक्सटाइल, पहले एक जमाने में अहमदाबाद मैनचेस्टर सिटी था, आज सूरत है। पूरे भारत को जितने भी कपड़े हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा, आधे से ज्यादा सूरत और इनके साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी एरिया जो है उसी से उनको टेक्सटाइल से उसका बिजनेस चलता है। बहुत सारे इसमें पहलू है, कॉटन है, विविंग है, स्पिनिंग है, डाइंग है, प्रिंटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत सारे भारत के जितने भी लेबर्स है तो सभी का कोई ना कोई यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है, उनके बारे में भी हम सबको सोचना पड़ेगा। इससे आगे भी हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो सीशोर यानी दरिया किनारा जो है अपने पास, अपनी यूनिवर्सिटी ने, कुदरत ने सबसे ज्यादा, बाकी की यूनिवर्सिटी जो भी हम जानते हैं कि 70 से ज्यादा यूनिवर्सिटी गुजरात में है, उसमें सबसे ज्यादा जो दरिया का किनारा जो है वो अभी अपनी पास है, मरीन इंडस्ट्री। विश्व में जितने भी देश है और उनका जो डेवलपमेंट रेट जो है ज्यादा है, उसके पीछे यही है कि उन्होंने पूरा अपना जितना भी किनारा है दरिया का, सीशोर का, उसका सबसे ज्यादा उसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया। हमने इसके बारे में ज्यादा नहीं काम किया। इसकी वजह से जो रोड ट्रांसपोर्ट है उनका कॉस्ट ज्यादा है, इससे ज्यादा हवाई ट्रांसपोर्ट का ज्यादा है, और रेलवे से लेके है तो थोड़ा कम होता है। अगर मरीन इंडस्ट्रीज के बारे में हम रिसर्च करेंगे तो सबसे कम पैसे में ट्रांसपोर्टेशन होगा। हम जानते हैं कि जितनी भी चीजें होती है उनका प्रोडक्शन कॉस्ट जितना नीचे आएगा, डाउन होगा। जैसे चाइना से अगर कॉम्पीट करना है, अगर विश्व के बाकी के देशों की प्रोडक्शन से भी कॉम्पीट करना है, तो सबसे पहला प्रोडक्शन
कॉस्ट जो है उसको डाउन करना है तो आपने को दरियाई जो है पूरा सबसे ज्यादा उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। कोस्टल हाईवे जैसे बारबुज का ब्रिज बन जाएगा तो वहां से पूरा नर्मदा तक जितने भी लोग हैं उनको पानी की समस्या वो भी जाएगी, तो उनके बारे में भी आप सोचिए। हो सकता है कि आगे जाके यहाँ भाजपा के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष की ये सिटी है, हो सकता है कि उनका विजन के बारे सूरत भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनेगा। तो उनका सोशल इम्पैक्ट क्या है, उनका फाइनेंशियल क्या है, उसका जो भी है आप जितने भी पहले मैंने जितने भी इसे में अगर रिपीट करूँ तो मेट्रो है, बुलेट ट्रेन है, रेलवे कॉरिडोर है, डायमंड है, टेक्सटाइल है, सबसे बड़ा ग्रीन एरिया वाली यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ा दरिया किनारा है। हो सकता है कि हवाई में भी सबसे ज्यादा अपने पास लैंडसम एयरपोर्ट कार्गो शुरू करेंगे आगे जाके। तो ये इसके बारे में हम सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सभी चीजों में अगर इंडियन कल्चर नहीं रहेगा तो आपका रिसर्च इतने लोगों को किस एंगल से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे रोबोट आगे आता है वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती है। आजकल जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं इसमें रोबोट का यूज करने से और इतनी मशीन के यूज करने से और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो आपको यही सोचना है। बाकी सभी अपने जो भी फ्रेंड फिलोसोफर गाइड जैसे डॉक्टर उमाशंकर जी है, डॉक्टर अमीजी जी है और हमारे पूरे वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के जितने भी सेनेट मेंबर है वो अभी के हैं या तो आगे है, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर है, सिंडिकेट के मेंबर है, अपने पूरे प्रिंसिपल परिवार, एचओडी परिवार, एम्प्लॉय परिवार, सभी की ओर से सभी पीएचडी स्टूडेंट्स को फिर से एक बार हम अभिनंदन करते हैं कि आप इसमें समाज के लिए कुछ मायने रखिए। आपके लिए तो जरूर रखेगा क्योंकि जैसे आप आजकल पीएचडी करना धीरे धीरे जाके कंपलसरी हो रहा है, आपके लिए तो मायने रखता ही है। पर आप आपके लिए सोचते हो तो साथ साथ में अपने समाज के लिए भी सोचिए, उनके लिए भी जो भी टॉपिक है उनके बारे में आप कीजिए। जैसे मैडम बता रही थी कि भाई जो भी है वो कैसे करना है, आपने जो सोच रखा है उसी के बारे में कीजिए। सिर्फ आपका पहलू चेंज कीजिए। हम मैंने जितनी भी मैंने बातें बताई वो आपका खुद का टॉपिक छोड़ के यहाँ नहीं आना है, सिर्फ उनका एंगल देखना है। क्योंकि साउथ गुजरात जो है उनका एरिया जो है हम सब जानते हैं कि कुदरत का एक अपना एक करिश्मा है कि जहाँ ज्यादा कम से कम आपत्ति आती है। अगर आपत्ति आती है तो कम से कम डैमेज करके कम डैमेज होता है, उनका आप फायदा उठाइए और अपने रिसर्च में हो सके इतना जल्दी उसके बारे में कि जितने दिन भी ये पीएचडी प्री रजिस्ट्रेशन कोर्स वर्क है उसमें ज्यादा से ज्यादा सिंसियर होके, ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे है तो बाद में देख लेंगे, ये बाद में देख लेंगे, बाद में नहीं देखना है तो अपने साथ लाइव करिए और उसके साथ ही जुड़े रहे। और फिर से हमारी जो टीम है डॉक्टर राजेश भाई, डॉक्टर सुनील भाई, डॉक्टर प्रवीण भाई और भारतीय शिक्षा मंडल के डॉक्टर श्री जितेंद्र भाई परमार जी, जो भी इसमें भी जितने भी अपने भारतीय शिक्षा मंडल के सदस्य हैं, जो भी अपने ये पूरे इवेंट में जितने भी लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने को सहयोग दे रहे हैं, सभी का भी मैं यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं और फिर से सबका शुक्रिया। थैंक यू सर। आपने बहुत संक्षेप में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पीएचडी के बारे में बात की और 2 मिनट में करीबन आपने 50 रिसर्च एरियाज बहुत सरलता से विद्यार्थियों को बताए। I'm sure your insights into the area of research are going to be useful to the PhD scholars. Now we move towards the end of today's program. Sometimes light goes out but is blown into flame by another human being. Each one of us owes deepest thanks to those who have rekindled this light. I would now request Dr. Hina Oza, Principal, State C.D. Burfiwala College of Commerce, Surat,
to propose the vote of thanks. Dr. Hina Oza, ma'am, please. Yes. Am I audible? मैडम आवाज નથી આવતો તમારો. You are not audible, ma'am. आपका आवाज नहीं आ रहा. Sir, yes. Now, Yes. હવે સંભળાય છે. hello. Am I audible now? Okay. Honorable Vice Chancellor, Dr. Chavda sir, Chief Guest of the function, Professor Uma Shankar Pachori ji, Guest of Honor, Professor Dr. Ami Upadhyay, Honorable Vice Chancellor of Baba Saheb Ambedkar Open University, In Charge Registrar Dr. Jaydeep Chaudhary, Convener of Pre-Registration Coursework Principal Dr. Hemali Madam, the distinguished members of the committee, host Professor Sunil Shah, aspiring research scholars and invitees. On behalf of Veer Narmad South Gujarat University, I, Dr. Hina Oza, am here for very important task of the proposing the vote of thanks, a very important part of the inaugural session of pre-registration coursework. We are indebted to Professor Dr. Uma Shankar Pachori ji, the National General Secretary, Bharatiya Shikshan Mandal, to honor the program as chief guest. Sir, हमारा सौभाग्य है कि आपने बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को ओरिएंट किया. इनसे ज्यादा अच्छी शुरुआत ओरिएंटेशन हमारे यंग एस्पायरिंग रिसर्च स्कॉलर्स के लिए क्या हो सकती है. हम आभारी हैं सर. रिसर्च को अपने अनुभवों के साथ विजडम को भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को समझाने के लिए. We are thankful to our distinguished guest of honor, Professor Ami Upadhyay ji, the Honorable Vice Chancellor of Baba Saheb Ambedkar Open University. Ma'am, we sincerely thank you to treat our university as an extended family of Baba Saheb Ambedkar Open University, madam. With your knowledge, you have very well shared that the curiosity and creativity are very important part of research, and every research scholar should enjoy the journey so that संशोधन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो जाए. और आपकी विजडम शेयर करने के लिए और छोटे छोटे किस्सों से रिसर्च स्कॉलर्स का हौसला बढ़ाने के लिए. थैंक यू वेरी मच मैडम. I am thankful to our own Vice Chancellor, Dr. Chavda sir, for being very supportive in organizing this pre-registration course as this is being happening for the first time in VNSGU. Similarly, we are thankful to in-charge registrar, Dr. Jaydeep Chaudhary ji, for being great support throughout the organizing of this program and designing of this program. We are thankful to Principal Dr. Hemali Madam, the convener of pre-registration coursework, for making this program start in time from today at a very short notice. I extend heartfelt thanks to Professor Rajesh Vai for briefing the students about the pre-registration coursework and its details. We are thankful to Professor Sunil Shah, the Associate Professor English, for hosting the program. I'm equally thankful to all the distinguished members of the Committee of Pre-Registration Coursework for designing the course and executing it well in time
with a very short notice. We are thankful to all the research scholars for being there and wish them a very successful program, because this 15 days pre-registration coursework is one of the biggest advantage your batch has got now. You will be enlightened, you will be having a proper orientation how to conduct research and what are the avenues for ethics and publication, and that will right tune your research work in your research journey ahead. So my heartfelt thanks to all of you for joining, and I would wish that you all will cherish every day of this session, the sessions of this course, and you will be benefited by this program. I'm equally thankful to all the officials and office support of VNSU for making this coursework start in time. And last but not least, I'm very thankful to all the invitees for joining the inaugural session of this pre-registration coursework. Thank you so much. Thank you one and all. Over to Sunil Bhai. Thank you very much, ma'am.